Welcome Shriji Hazur Dr. Laksharaj Ji to the city of Nawabs, Lucknow. It's a perfect example of Ganga Jamni Tehzeeb. Perfect example of culture, tradition. हवा में कशिश है, खाने में स्वाद है और बहुत सारे प्यारे लोग लखनऊ के यहाँ पर हैं, which makes Lucknow beautiful. वो कहते हैं आपका स्वागत लखनऊ में है, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं. Shri Ji is the man behind the ancient tradition, historical palaces alive. A huge round of applause for a man who is physically here. And since we are from Lucknow, तो लखनऊ की आदत नहीं जाएगी. In honor of your thing, sir. वो हकदार है किनारों के जो बदल दे बहारों को. वो हकदार है किनारों के जो बदल दे बहारों को. कुछ वो भी हैं जो वक्त के साथ से बदल गए. कुछ वो भी हैं जैसे वक्त के साथ से बदल गए. You are a perfect example. And when we talk about legacy, heritage, entrepreneurship and enterprise, you are the example for our country. It is a burning topic for our country. Uttar Pradesh, you, Uttar P. Pradesh, you, unlimited P. problems, you, unlimited P. potentials and possibilities. We are the 5th largest country in the world if we go by the land bank and population, and we may be as good as Brazil in coming days. We are standing on a platform of problems and solutions, and UP is ready to go for a 1 trillion economy. Now this cannot happen without tourism. After agriculture and industry, it is the tourism which is the way forward for our state. And the stakeholders, the government, the administration, the policy makers, the tourism operators, the legacy owners, which are here today to talk about the way forward, and our community, which we all add to the movement of 1 trillion economy. I always believe that it's together we stand and together we rise. This cannot happen without a single individual effort. They say double the speed and triple the economy. Double the speed, triple the tourism. Double the speed, triple the infrastructure. Double the speed, triple the investment. Double the speed, employment rises. There's a footfall of employment environment into the state. This is what UP government has been talking about. How to increase the footfalls in Uttar Pradesh, and Uttar Pradesh from the west to the east, where every 100 kilometers you're changing the dialects, culture. You can imagine the kind of potentials every city is talking about. We have so many friends over here who are transforming the path. We have Shruti and Udit over here who've just started this process. My friend Radhika is here who's on the process also to transform her palaces into hospitality. Members of the dais, I have such lovely people on the dais, I can't even tell you. But we have Raghav Prakash from Universal Booksellers, Lucknow. Raghav, a grand event has been organized in Lucknow today, right? Along with the CIA and UP Tourism. What was the all event about? You were a part of it. So the event was about discussing heritage, legacy and entrepreneurship. A combination of the three is required in our city and in our state. So the whole idea was to bring Shriji Laksharaj, Dr. Laksharaj of Mewar here to discuss, because see, Jaipur as a city, Rajasthan as a state has become such a nice tourism hub where there is entrepreneurship and there is heritage as well. So it's a combination of all these things. So just like that, we need a combination of these three things in Uttar Pradesh and Lucknow. So to discuss and to know more from the leader, we had him here, and we had a lot of nice discussions here and got to learn a lot.
And my question to him was also that how can education and education institutes help in bringing up a city like Lucknow and a state like Uttar Pradesh and to bring in more tourism? How can education help? And he gave a wonderful answer to that as well. So I think there's a lot to learn from such people, and we're open to that, and we're open to grow and to develop into a much greater and a brighter state and city. So yeah. How much Rajasthan have you seen till now? I have seen very little bit. I've been to Jaipur Okay. and I have explored Jaipur. Okay. And it's a beautiful city, full of palaces, full of culture and heritage. And I think Lucknow also is so rich. UP is so rich, and Lucknow especially is so rich in culture and heritage. We have so much a grand legacy behind us, and I think we should showcase it more. We should promote it more. And I think that will really help improve the situation here. So I believe that you would love to visit CG sometime in Udaipur, Definitely, isn't it? would love to. Very excited, and I'm yet to have a conversation with him. So very excited to meet him and to get more ideas out of him. And we can also show him more of UP. Definitely, that's Isn't the it? plan. उन्होंने काफी तो देख लिया. लखनऊ भी दिखाएंगे. Exactly. Okay, dear. Thank you. Good night. See my parents out there. I can see everybody of you who has been a part and parcel of that journey. And of course, time has been a witness to it. As an archaeologist and a heritage enthusiast, and that too hailing from a site called Kaushambi, the ancient most site of that part of Uttar Pradesh, where it says that iron has been dated to more way back into about 1800 BCE. That's the earliest reference of iron that we have at Kaushambi. Of course, myself belonging to the Chandravanshi lineage, we cannot forget, but of course we know that in the Mahabharata, it is said that Nichakshu, the fifth king from Parikshit, shifted his capital from Hastinapur to Kaushambi. And Nichakshu was a grandson of Parikshit, the grandson of Arjuna. So we need to understand the idea of legacy and heritage. It is something that roots us deep into something more touching, something that provides an insight into the future, as rightly said by one of the speakers before I came upon the dais. An idea of heritage as an element of tourism and entrepreneurship. The idea of legacy that goes way into millennia and centuries, and still not only being handed over, but also being preserved and accrued into something more sustainable. Please introduce yourself. My name is Kuwar Ashali Chandel, the youngest archaeologist and Egyptologist of India. And we have also been leading this House of Kosu, which is a trust of our erstwhile royal family from Kaushambi, which is near Allahabad, Prayagraj. And of course, I'm also into diplomacy, law, into different things. I'm a student of about 22 languages. Oh my goodness. So I believe that much is yet to be learned. Today you were in the city of Lucknow and a grand event was organized by CII. Can you please let us know about how was the event all about? Yes. The CIA has been very gracious for having extended a private visit of Shriji Huzur, Dr. Lakshraj Mewarji in Lucknow. Of course, he was also scheduled to come to Varanasi and Allahabad before Lucknow. It was the CIA that came up with the idea of executing this private visit into something marvelous as we had today. And here we talked about कि कैसे यूपी जैसे राज्य में हम अपने जो हेरिटेज साइट्स हैं, जो हमारी विरासत है, जो हम सब की एक लेगेसी है, वो किसी दुकानदार की भी लेगेसी हो सकती है जिसके 4-5 पुश्तों से वो दुकान चली आ रही है, और लखनऊ में तो भाई एवरीथिंग वी हैव सो हर चीज़ पे बात है. एंड वी बिलीव दैट दिस आइडिया ऑफ लेगेसी, हेरिटेज बिजनेसेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज समथिंग दैट्स गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग वे इन द फ्यूचर. A point was being discussed that the conversion of palaces into hotels and all, right? Some people have a perception that if we are going to convert them, so we are going to lose the existence of the palaces as a whole, Yes, it happens. right? Yeah. So what is the vision about means? As a family, Is it a loss for us? No, as a family who owns some properties of that sort, we believe that we have some apprehensions. डर लगता है कि बाहर के लोग आएंगे तो उसको कब्जा कर सकते हैं या फिर उसमें उस तरीके की चीज़ें फिट कर सकते हैं जो हमारे पक्ष में नहीं है. But I think that in the long run, converting heritage properties into hotel or something, even not just hotels, you can also convert them into heritage schools. You can convert them into centers of craftsmanship training and learning. Goes a long way in creating and sustaining the living spirit of the heritage. किसी इमारत
उसकी यदि आप दास्तां देखिए वो केवल ईंट और पत्थर नहीं होती, उसके अंदर की आत्मा उसमें बसे हुए लोगों से बनती है। सो वो हेरिटेज जब तक हम रिवाइव नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश में जहाँ पर हर गली कूचे में आप एक हेरिटेज देख रहे हैं, जहाँ पर हम देखते हैं खबरें मिलती हैं कि हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ को बुलडोज किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, या लोगों के द्वारा उसमें खुर्चा खुशी हो रही है, कहीं उसको लोग थूक रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। हमें ये समझना है कि ये केवल ईंटा पत्थर नहीं, एक इमोशन है, और यही इमोशन है जो हमारे भारत को, हमारे राज्य को दूसरों से अलग बनाता है। Do you see any similarities in terms of tourism between Uttar Pradesh and Rajasthan? Absolutely. And the two sister states, I would say. Delhi comes in the middle. Okay. But I think that they have a lot of similarities. The same ठेठ पेट, and of course जो राजपूती परंपरा है दोनों में लगभग एक ही। हमारे अवध के तालुकदार अलग हैं, Okay. पूर्वांचल के राजपूत अलग हैं, राजस्थान में भी मारवाड़ मेवाड़ अलग। तो श्री जी कमिंग इन लखनऊ, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज सक्सेस for enlightening the erstwhile Rajwadas, the Talukdars, the Nawabzadas of Awadh. What inspires you to learn so many languages, you said? I think it's partly the heritage that I have inherited from my family. You need to have a very sustained, informed mind to understand what you have inherited, and also something that you can enrich and pass on to the future generation. But I think that there's also one last bite I would add. Heritage is not only to inherit, Okay. it is also to enrich and to sustain that. So I suppose that Rajwadas and the erstwhile royals now should also focus on things apart from the what they were, कि हम क्या थे. Much focus on Instagram these days is on कि हम क्या थे. Now the focus should also come on हम क्या कर सकते हैं. You learn from the European elites. I have friends like from the Rothschild family. Like I was at Oxford so time, they were friends, and I see their mindset is absolutely different. यहाँ पर हम उसी पे stuck हैं, including our family. हम क्या थे. Exactly. We need to work on something that adds the grace, the charm, the entrepreneurship, the enterprise, and sustainability together, suiting the 21st century. Thanks a lot, and we wish you a good day ahead. Thank you so much. जय 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 जय. जब आपसे पहले विद्वान बोल चुके होते हैं, आदमी यही सोचता रहता है कि मैं क्या बोलूँ, मैं क्या बोलूँ, मैं क्या बोलूँ। मैं सोचता हूँ कि हाँ ये बोलूँगा, अब ये बोलूँगा, अब ये बोलूँगा। जैसे जैसे क्रम में हमसे ज़्यादा तजुर्बेदार शख्सियत सामने आती जाती है, वो उन बातों को कहती जाती है। ये अच्छा लगा कि लोग लखनऊ में मुस्कुरा सकते हैं, CI के कॉन्फ्रेंस में लोग मुस्कुरा सकते हैं, ये अच्छी बात है। मुस्कुराहट अक्सर थोड़ी सी पीछे से आ रही है, तो मुझे ये मालूम है कि मुझे पीछे वालों से जो है वो बात करनी है, आगे वालों से कम। दूसरा, मैं इस वजह से घबराया हुआ था कि मैं अंग्रेज़ी में बोलूँगा हिंदी में, क्योंकि जितने लोग आए सब अंग्रेज़ी में बोले। मेरी अंग्रेज़ी जो है वो मेरे दोस्तों की तरह मजबूत है, पर उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तो मुझे क्षमा करिएगा कि मैं थोड़ा सा उस भाषा में तंग हूँ। हालांकि मैं किसी भाषा के खिलाफ नहीं हूँ, हमें सारी भाषाएं जो है वो आनी चाहिए। अंग्रेज़ी भाषा एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, हमें उसमें बिल्कुल जो है वो अच्छी तरीके से पकड़ होनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। अन्य और कोई दूसरी भाषा हो वो भी हमको सीखनी चाहिए, पर कहीं ना कहीं हमें जो है हमारी संस्कृति से, हमारी विरासत से, जिसको हम लोग छूने से ऊपर जिसे देख सकते हैं, चाहे वो हमारी भाषा में क्यों ना हो, हमें हिंदी को या हमारी मातृभाषा को या हमारी स्थानीय भाषा को जो है वो किसी कीमत के ऊपर भूलना नहीं चाहिए। बड़ों ने की बात कही, ये कहा कि देखिए अंग्रेजी भाषा जो है वो देखिए A फॉर एप्पल से शुरू होती है और Z फॉर जीरो पर जाकर खत्म होती है। इसमें तो मैं पास हो गया। ये जो जनाब हमारे सामने पहली साथ में जो विराजमान है, उन्होंने A फॉर एप्पल से लेकर Z फॉर जीरो तक तो मुझे पास कर दिया, तो 2 अक्षर तो मुझे आते हैं। पर देखिए आप कि अंग्रेजी भाषा सेल से शुरू होगी, शून्य पर जाकर खत्म होगी। एक आपकी और मेरी मां को देखिए, अ से अनपढ़ से शुरू होगी, ज्ञ पर ज्ञानी पर जाकर खत्म होगी। ये ताकत है हमारी संस्कृति, पर हमें इसको पहचानने की आवश्यकता है। इस वजह से नहीं कि आज का युवा ये सोचता है कि मेरी गर्लफ्रेंड शायद मुझसे इम्प्रेस ना हो तो मुझे अंग्रेजी में बोलना चाहिए। जरूरी नहीं। हम लोग किस प्रकार से किस चीज को कहाँ पर कैसे पेश करते हैं। मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो शायद किसी को ये एहसास कराने की या बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ महसूस करने की जरूरत है। हमारे गौरव भाई ने कुछ चीजें बहुत खूबसूरत जो है वो फरमाई। मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमारे गौरव तो हैं ही, आप प्रकाश में फैला रहे हैं, पर एक चीज जो है
जो मैं यहाँ पर महसूस भी कर रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, शायद इससे बेहतर मंच मुझे नहीं मिलेगा इस बात को कहने के लिए, कि मेरे दामन में कांटों के सिवा कुछ भी नहीं, आप फूलों के खरीदार नजर आ रहे हैं मेरे दामन में। अब देखिए, लखनऊ के लोग जल्दबाजी करेंगे तो कैसे काम चलेगा। मेरे दामन में कांटों के सिवा कुछ भी नहीं, आप फूलों के खरीदार नजर आ रहे हैं। हश्र में कौन गवाही मेरी देगा ये सागर, सब तुम्हारे ही तरफदार नजर आ रहे हैं। मैं गौरव भाई का, मेरे युवा साथी अर्श जी का, CII से मौजूद अधिकारीगण, मेरे व्यवसाय के साथी मानवेंद्र जी, उपस्थित सभी यहाँ पर मौजूद खातिन हज़रात, मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि आज मैं आप लोगों के शहर के अंदर जो है वो यहाँ पर उपस्थित हूँ, और ख़ास तौर के ऊपर एक ऐसा विषय जो हम सब लोगों के जो है वो शायद करीब है, और केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं। और आज इस प्रदेश के अंदर जो है इस चीज़ की चर्चा हो रही है, इससे ज़्यादा और खुशी नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं ये है कि इस चीज़ से, इसी सोच को, हमारे संस्कृति को, हमारे हेरिटेज को जो है वो बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी। कहीं ना कहीं इंसान जो है इस दुनिया की पहली इकाई है। इंसान से घर बनता है, घर से गली बनती है, गली से मोहल्ला बनता है, मोहल्ले से शहर बनता है, शहर से प्रदेश बनता है, प्रदेश से देश बनता है, और देश से दुनिया बनती है। आज हम लोग संस्कृति और पर्यटन का यहाँ पर एक दुनिया बनाने के लिए उपस्थित हुए। ये हमारे लिए खुशी की बात है, और ये पैगाम और किसी प्रदेश से नहीं, उत्तर प्रदेश से जा रहा है, और आज सभी लोग इस सभागार के अंदर जो है वो उपस्थित है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हजारों लोग भी होते ना यहाँ पर, तो आड़े वक्त पे और काम करने वाले इतने ही होते जितने अभी यहाँ मौजूद हैं। ये 3 दफे बात समझ में आ सकती है, पर जिनको आ गई होगी वो इस बात को समझेंगे और उसकी कदर करेंगे कि आज अगर हमारे को कोई एक नई अलग से लानी है, हमारे को एक लक्ष्य तय करना है जिस पे हमें राज करना है, अगर हमें किसी चीज की आवश्यकता है तो एक जुझारूपन की, एक कर्मठता की, ये सोच कहीं ना कहीं मुझे मेरे परिवार की तरफ खींच कर लेकर जाती है। मैं कहानी सुनाने वालों में से नहीं हूँ। स्टोरी टेलिंग आजकल एक ऐसा जुमला है जो हर दूसरा व्यक्ति कहना चाहता है। मैं ना कहानी सुनाता हूँ, ना मैं एक काल्पनिक व्यक्ति हूँ, और मैं बात करता हूँ सच्चाई की। मैं बात करता हूँ जो चीज़ें किसी की हकीकत हो, और क्यों किसी और की चर्चा करें, बात करें, स्वयं की करें, उससे उदाहरण दें जो कहीं ना कहीं हम लोग उस चीज को देखकर कुछ सीख सकें, समझ सकें। क्योंकि आलोचना करने वालों के कभी भी स्मारक नहीं करना। याद उन लोगों को किया गया है जो कुछ कर गुजर गए हैं। हाल ही में मैं काशी से आज सुबह ही है जो लौटा हूँ, मैं अपने आप को इतना पवित्र महसूस कर रहा हूँ कि मेरे को लगता नहीं है कि मैं मतलब जो है ऐसा पहले मेरे अंदर कभी कोई महसूस हुआ। जब घर वाले भी आए तो मैंने कहा थोड़ा दूर से चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं अभी काशी से लौटा हूँ। और ये बात मैं बड़े फख्र से कहना चाहता हूँ कि सन 1641 के अंदर मेरे पूर्वज पहली दफ़ा यहाँ पर आए थे जिन्होंने राणा घाट का निर्माण किया था काशी के अंदर, और उसके बाद लगातार मेरे पिताश्री तक 2010 तक वो यहाँ आते रहे। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं भी वहाँ जा सका, दर्शन कर सका, गंगा माँ के आशीर्वाद जो है वो मैं ले सका। और एक और चीज़ जो शायद पूरे देश के करीब है और आप लोगों के ज़्यादा करीब है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर मेरे पूर्वज महाराणा फतेह सिंह जी को वो सौभाग्य मिला कि पहली राशि जो है वो देने का, उस यूनिवर्सिटी को बनाने का सन 1912 के अंदर वो सौभाग्य भी मेवाड़ को हासिल हुआ सन 1912 में। तो शिक्षा का भी, हालांकि ये शिक्षा के लिए जोर थी, मैं कभी नहीं आप लोगों को कहूँगा कि आपको ताली बजानी चाहिए, मेरे भाषण में आप कभी नहीं सुनेंगे, पर मैं ये जरूर कहूँगा कि शिक्षित होने के लिए और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, और खास तौर पे इस चीज़ की, क्योंकि जितनी ऊर्जा आप मेरे में भरेंगे उतनी ही मैं आपको वापस देने वाला हूँ। तो ये बात आप जो है वो मान के चलिएगा। खास तौर के ऊपर जब हम हेरिटेज के ऊपर यहाँ पर, मैं और किसी की नहीं, मैं परिवार की चर्चा करना चाहता हूँ। आज इतनी कुछ चीज़ें जो है वो कही गई। आज की होटल इंडस्ट्री की चमक धमक को देखकर, जगहों को देखकर हम लोग उसको बहुत कुछ समझते हैं, पर उसके पीछे की जो मेहनत है, उसके पीछे का जो एक त्याग, तपस्या और बलिदान जो रहा है, वो हम लोग नहीं देखते हैं। तो आज कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझने की आवश्यकता है, उस चीज़ को देखने की आवश्यकता है।
प्रथम कदम इस क्षेत्र को लेकर अगर किसी ने हमारे परिवार से भी उठाया था तो वो मेरे दादाश्री ने उठाया, और कोई आसान परिस्थितियों के बीच में नहीं था। देश आजाद हुआ था, हमारे को हमारी दाल रोटी चलानी थी कि भाई आगे बिजली पानी का जो खर्चा है वो कहाँ से चलेगा, कैसे चलेगा, क्योंकि उनके दिमाग में एक बात पूर्ण तरीके से तय थी कि देश आजाद हुआ है। और मेवाड़ को वो सौभाग्य हासिल था कि जब आजादी मिली तो मेवाड़ प्रथम वो राज्य था जिसने इस आजाद देश के अंदर आजाद भारत को बनाने के लिए पहला कदम जो है वो उठाया था। तो वो हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। और जब मेरे परदादा श्री से पूछा गया कि आपका क्या फैसला है महाराणा भोपाल सिंह जी को, तो तब उन्होंने बड़े हंसते हुए और मुस्कुराते हुए कहा कि इस देश को जिसने वो शब्द दिया स्वतंत्र, वो और कोई नहीं, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप थे। ये फैसला मेरे पुरखे बहुत पहले ले चुके, हम आजाद भारत को बनाने के अंदर सबसे पहला ठोस कदम उठाएंगे। वहां से ये सिलसिला कहीं ना कहीं शुरू हुआ था। तब दादाश्री ने तय किया कि हम लोग इन सारे सफेद हाथियों का करेंगे क्या और चलाएंगे कैसे, क्योंकि ये दौर वो नहीं है कि जहाँ खंडरों को लाइट लगा दी और उसे ये कह दिया देखिए कि ये कितना खूबसूरत है। कहीं ना कहीं आज की तारीख के अंदर इस 21वीं सदी की तकनीक को हम लोगों को समझने की आवश्यकता थी। वो दौर नहीं था जहाँ दो गर्म बाल्टियों के साथ में आदमी कॉरिडोर के अंदर दौड़ता फिरे और ये कहे कि इट इज रनिंग हॉट वाटर। वो हेरिटेज हॉस्पिटैलिटी के पास में वो बहाने नहीं थे। तब जाकर कहीं जो है वो 1960 के अंदर लेखनलिस का जन्म हुआ, और जब जन्म हुआ तो एक आलोचनाओं के बीच में जन्म हुआ। सबसे पहले हमारे पत्रकार बंधु जो यहाँ मौजूद हैं वो शायद इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, तो सबसे पहली जो हेडलाइन छपी वो ये छपी कि राजे महाराजा जूठे बर्तन धोएंगे। वहां से जो है होटल इंडस्ट्री का कम से कम राजस्थान के अंदर और कम से कम उदयपुर के अंदर जो है वो जन्म हुआ। वो चाहते तो शायद अपना निर्णय बदल सकते थे, वो चाहते तो अपनी सोच को बदल सकते थे, वो चाहते तो कुछ और कर सकते थे, पर नहीं, वो अड़िग रहे, वो अपनी सोच के ऊपर रहे, और वहां से उन्होंने उस सिलसिले को चालू किया। और आज की तारीख में हम लोग ये काफी हद तक सुनते हुए आ रहे हैं कि उदयपुर इज नोन एज द वेनिस ऑफ द ईस्ट, उदयपुर इज नोन एज द वेनिस ऑफ द ईस्ट। आज मैं इस बात को छाती ठोक कर कहता हूँ कि अब दौर और वक्त वो आ चुका है जहां पर वेनिस ये कहता है कि वी आर द उदयपुर ऑफ द वेस्ट। उसमें उसके घर में मथुरा काशी है। तो कहीं ना कहीं उस सोच के प्रति जो है वो बद रहना, उस लक्ष्य के प्रति जो है वो बद रहना और आगे बढ़ते जाना। तो आज उसी सोच के साथ में जिस स्थान के अंदर अपन मौजूद हैं, जिस जगह के अंदर हम यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे इस बात को कहते हुए भी बड़ी खुशी है कि टाटा हाउस ऑफ टाटास के साथ में मेवाड़ परिवार का 3 पीढ़ियों का जो है वो रिश्ता रहा। दादाश्री ने नींव रखी, पिताश्री ने उसी सोच को जो है आगे बढ़ाया, इस देश को वेडिंग टूरिज्म को जो है वो लाकर कहीं ना कहीं जो है एक स्थान दिया, उस राजस्थान को वहाँ पर आकर और भारत को आकर वहाँ पर खड़ा किया। 88 के अंदर पहली जो है डेस्टिनेशन वेडिंग को जो है वो अंजाम दिया गया। चुनौतियाँ आती हैं जो बड़ी होती हैं, छोटी होती हैं, पर कहीं ना कहीं हमें उनसे निपटने के लिए अपना साहस, जुझारूपन और कर्मठता को रखने की एक आवश्यकता है, क्योंकि वो आएंगी और जाएंगी। काम हम लोगों को करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कहीं ना कहीं ये सोच जो है आप लोगों को प्रेरित करेगी। मुझे ये भी बताया है कि कुछ चंद और सवाल हैं जिसके बारे में हम लोग बाद में इत्मीनान से और चर्चा कर सकते हैं। और पुनः मैं CIA का आपका बहुत बहुत साधुवाद जो है वो मैं ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ याद फरमाया, मुझे ये मान सम्मान दिया और मुझे ये मौका दिया आप सब लोगों से रूबरू होने के लिए। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद जोर जी, wonderful discourse. Thank you. You can bring to us and what the wonders that you've done in the state of Rajasthan. I'll start with a small story. When I got selected in the civil services, मेरी training लगी राजसमंद में, and KSS organization में था Aruna Roy and all they were working on right to information, and I had the unique opportunity of being just like a common person traveling on buses or golden transport. उनके ट्रक्स चलते थे तो they wouldn't have a vehicle, purest sort of an NGO. तो हम लोगों को नॉनवेज अगर खाना होता था तो ट्रक में बंद करके उनके सिस्टम में था कि या तो दाल होगी या सब्जी होगी। तो they used to even take to us villages, a बड़ा unique pattern of tourism and strategy था उनका कि they would divide us in the village households
और खाने जैसे 5 आदमी का मेंबर की फैमिली हो तो सब एक एक रोटी दे देगा तो 5वां व्यक्ति अगर छठा हमने तो ये हो जाएगा. एंड दे वुड डिवाइड इन डिफरेंट फैंटास्टिक वर्क देयर ऑन राइट टू इन्फॉर्मेशन. तो हम लोग को जाना होता था जब एरिया में तो गोल्डन ट्रांसपोर्ट के बसेस को लेके जाते थे एंड वी यूज्ड टू वंडर देयर ऑफ द यूनिक हेरिटेज दैट Rajasthan had. And I think we were just starting off at that point of time. This is 95. I think early 90s may, a lot of things start happening. And I think Udaipur may, your father probably started around 89, 90 at that point of time. So a lot of things to be learned since then in these 30, 35 years, where a derelict structure has been promoted not only as a destination but your roads, your 360-degree approach towards how tourists can travel, what they need, the kind of food they will have, the kind of experiences they want to enjoy. I also have this privilege of being on this chair and heading this department for the second time. I was DG Tourism 2014-15 when we did a lot of working on the heritage tourism, and the establishment then wanted us to move forward in that direction. A lot has changed since then, and which is why I think that your coming here to Lucknow is immensely pregnant with possibilities of where we can go, because this meeting could perhaps bring about a strategic shift in the manner in which we have been operating. If I'm to club it in just one sentence, then probably we're just taking baby steps and working in some haphazard manner of addressing a constituency or probably an emerging problem that is happening at some point of time, or maybe the Honorable Chief Minister coding us to go and do some work in Kalinjar and just coming over with some scheme and doing things in a manner. Today, UP Tourism has organized a grand event under its supreme leadership. Please let us know about the event. What was it all about? This event has been jointly hosted by the CII and we have assisted them in getting this event through because आज श्री लक्षराज राज सिंह जी का यहाँ पे अराइवल रहा है और दे आर स्टेट विच हैज़ वर्कड अ लॉट इन हेरिटेज टूरिज्म. तो उस लिहाज से उनसे हम लोग को बहुत सीखने का मौका था और आज यहाँ पे जितने भी प्रॉपर्टी ओनर्स आए हैं और जो लोग अदरवाइज हेरिटेज टूरिज्म में इंटरेस्ट लेते हैं उनके साथ 1-to-1 इंट्रैक्शन उनका रहा है और सरकारों ने क्या किया, अधिकारियों ने क्या किया, लोगों से किस प्रकार से मदद मिली, किस प्रकार से राजस्थान की जर्नी रही है, बहुत को शेयरिंग रहा एंड इट्स बीन रियली इंटरेस्टिंग कि उन्होंने जो इंसाइट्स अपने दिए हैं किस प्रकार से टूरिज़्म को, हवेलियों को एक प्रोडक्ट के रूप में विश्व के सामने रखा है और आज राजस्थान टूरिज़्म जो है इज़ वन ऑफ दी मोस्ट अटेंडेड टूरिज़्म डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड और दुनिया में हर लोग जानते हैं. तो यूपी जो अपनी रास्ता अब हम लोग अग्रसर कर रहे हैं उसमें जिस प्रकार का टूरिज़्म ग्रोथ आ रहा है उसमें हम और क्या कर सकते हैं, राजस्थान से क्या सीख सकते हैं, उसके बारे में बहुत ही बेनिफिशियल रहा. And I'm very thankful to the Dr. Singh ji, the CII, Gaurav Prakash ji, everybody for having hosted this event here. It was nice. So do you see a connection between UP and Rajasthan in terms of tourism? We have a different tourism products apart from heritage tourism which they have in abundance. We have a lot of on spiritual circuit, Buddhist circuit वगैरह. तो यूपी में कह सकता हूँ कि अगर डाइवर्सिटी इन टूरिज्म के हिसाब से देखा जाए इतना डाइवर्स स्टेट नहीं मिलेगा जिसमें धर्म के तमाम चीज़, सभ्यताओं के तमाम चीज़, रजवाड़ों के तमाम चीज़, वाइल्ड लाइफ के तमाम चीज़. बिकॉज अन्य राज्यों में एक रहता है कि वाइल्ड लाइफ है तो बहुत वाइल्ड लाइफ है, अगर हेरिटेज है तो बहुत हेरिटेज. सच अ गुड मिक्स ऑफ एवरीथिंग दैट यू हैव अक्रॉस द स्टेट इज समथिंग अदर स्टेट्स are lacking to many कहूँगा, but this is something we can evaluate from. So this is your second year in tourism department, right? What changes have you seen in the last decade? Like you were 10 years back, you were working, right? So क्या change आपको दिखता है तब से आज में? सबसे बड़ा चेंज तो ये है कि बजट हमारा करीब 30 गुना बढ़ गया. अच्छा जी. और जिस प्रकार का इंटरेस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पिरिचुअल टूरिज्म में डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज के लिए लिया है. जी जी. दूसरी जो बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत ही फॉर्मेटेबल पॉलिसी है हमारी इन प्रॉपर्टीज को बढ़ाने के लिए. 34 आइटम्स है उसमें, चाहे होटल हो, रेस्टोरेंट हो, उसमें हम लोग 25% 40 करोड़ तक की सब्सिडी दे रहे हैं. एक बहुत बड़ा मूवमेंट उसके लेके है.
कल्चर में कुछ म्यूजियम्स की बातें होती थी, 4-5 म्यूजियम। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 15 म्यूजियम बन रहे हैं Oh my यूपी में। goodness, क्या बात क्योंकि अभी 1-2 दिन एक साल के अंदर सब आपको दिखने लगेगा। आपने देखा नेवल म्यूजियम को जो माननीय रक्षा मंत्री जी, 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 मुख्यमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया, जी। इतनी बड़ी लाइन लगती है कि खत्म नहीं हो पा रही। बिल्कुल, तो देखिए कितना उत्साह है लोगों में। जी। तो टूरिज्म इज द न्यू बज़वर्ड अराउंड, एंड आई थिंक वेरी प्राउड टू बी at this point of time working in this state, which is going all the way to promote tourism. सर इन सेकेंड के और आपकी नई प्रायोरिटीज़ या कुछ नए टारगेट्स हैं, कुछ लक्ष्य हैं? आई थिंक रूरल टूरिज्म इत्यादि को हम लोग बहुत आगे और अभी ले जाएंगे, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट और यूथ को जो है उससे कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट मिलता है। एक्सपीरियंशियल टूरिज्म एंड रूरल टूरिज्म वुड बी ऑल्सो बी दी फोकस अपार्ट फ्रॉम हेरिटेज एंड ऑल द अदर थिंग्स दैट वी डू। थैंक्स लॉट सर, वी विश यू अ गुड डे अहेड सर। थैंक यू। Heritage palaces, forts, even residences. There have been issues of the title not being clear at all. If the title is not clear, ownership documents are not in place, then it doesn't become a bankable property, and then you can't raise a loan while conserving it and converting it into a hotel or whatever it is, right? So is there any solution which has been found for that? Because a lot of property owners are not able to move ahead because of not having clear titles of the property. And the second question is to Manvendra. What's the timeline for Chhatramansal? Lucknow has been waiting for far too long, Chhatramansal and the other Roshanwala Koti also. What's the timeline? I believe you've had problems in the past in the sense that certain approvals that you wanted from the government didn't come through in terms of underground parking and so on and so forth in the lawn area. Are those all sorted, and by when it becomes operational? Sports Prakriti for the character. So there has been a slight shift in the approach of the department, because I quite concede the fact that it is not for me, as in the tourism department, to look into the character of people. I am here to look after the tourists, and if the hotel is good, to go as per the norms of the tourism department, which is to have 6 rooms or 8 rooms, as the case may be. With a nominal facility of staying, and the owner is staying at the property, it is good to go, and they should have some fire arrangement, because these things do happen. दोस्तों और हिंदी में गुफ्तगू की है, उसमें बहुत मज़ा आया, बहुत लुत्फ़ आया। मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि लखनऊ जो है वो नवाबों का शहर कहलाता है, और यहाँ की जो गंगा यमुनी तहजीब है वो दुनिया में मशहूर है। यहाँ पर बेगम आलिया ने हनुमान जी का मंदिर उसकी तामीर करवाई। बड़े मंगल की शुरुआत जो है वो बेगम आलिया ने करवाई। यहाँ पर जो रामलीला की जगह जो है, ग्राउंड जो है, वो नवाब भाई दली शाह ने दी। हनुमानगढ़ी की आराजी जो है नवाब सिराजुद्दौला ने दी। उसी तरह से राजा जवाहरलाल ने यहाँ पर इमामबाड़ा बनवाया, पंडितायन ने यहाँ पर मस्जिद बनवाई। तो ये लखनऊ की गंगा यमुनी तहसील है। तो जिस तरह से जो आपका एक प्रोग्राम है यहाँ के टूरिज़्म को बढ़ाने का, अगर हम लोग लखनऊ की और अवध की गंगा यमुनी तहजीब को ध्यान में रखते हुए यहाँ के टूरिज़्म को अगर बढ़ाएंगे तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। और लखनऊ शहर, यहाँ के जो उत्तर प्रदेश है और हिंदुस्तान, सबके लिए जो मौका है, जो महल है, उस हिसाब से अगर हम लोग गंगा यमुनी तहजीब के हिसाब से टूरिज़्म बढ़ाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप साहब अस्सलाम वालेकुम। आज आप अपनी ही लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं, और एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसकी कुछ जानकारी आप हमें देना चाहें तो। देखिए, आज यहाँ ताज पैलेस में जी एक प्रोग्राम था कोसाम की तरफ से, और इसमें ये हेरिटेज लेगेसी एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योरशिप इसके ऊपर था। और ये मेवाड़ के जो महाराना हैं, ये श्री श्री हुजूर जी वो तशरीफ़ लाए थे जी। और फिर माइन प्रताप सिंह साहब जो थे वो भी आए थे, वहाँ से तशरीफ़ लाए थे राजस्थान से। अमृत अभिजाज साहब जो थे, सेक्रेटरी टूरिज्म हैं जी, ये थे। और फिर गौरव प्रकाश साहब थे और हर्ष अली साहब थे, ये लोग जी 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 जी। तो बहुत अच्छा रहा। और यूपी टूरिज्म और लखनऊ और अवध के टूरिज्म के प्रमोशन के सिलसिले में जी काफ़ी अच्छी बातें हुई और बहुत मालूमात हुई। और एक हमारा भी सजेशन था और इस तरह का कि जो लखनऊ जो है वो नवाबों का शहर कहलाता है जी जी जी। और यहाँ की जो तहजीब है, जो नवाबीन अवध और बेगमाते अवध में जो तहजीब दी है, वो गंगा जमुनी तहजीब दी है। अब देखिए,
जो यहाँ पर अलीगंज का मंदिर है, बेगम आलिया ने इसकी तामीर करवाई। जो बड़े मंगल का ट्रेडिशन है भंडारे का, वो बेगम आलिया ने करवाया। फिर यहाँ पर जो ऐशबाग में जो रामलीला ग्राउंड है, नवाब अली शाह ने उसको डोनेट की। फिर आपका वहाँ के ऊपर हनुमानगढ़ी जो है अयोध्या में, वो नवाब शुजाउद्दौला ने दिया। इसके अलावा यहाँ पर राजा झाऊलाल जो एक हिंदू राजा मतलब वो थे अवध के रिजीम में, तो उन्होंने झाऊलाल का इमामबाड़ा बनवाया। अमीनाबाद में जो पंडिताइन थी, उन्होंने एक मस्जिद की तामीर करवाई। क्या बात तो है। इन सब चीज़ों माशाअल्लाह को ध्यान में रखते हुए ये गंगा जमनी तहजीब जो अवध की है, तो हमने कहा था कि जो यहाँ का टूरिज्म है उसको गंगा जमनी तहजीब के तर्ज को अगर इसको प्रमोट किया जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो जो हमारा सवाल था या जो हमारा सजेशन था, वो जो यहाँ पर ऑडियंस थी उन लोगों को बहुत पसंद आया था। लोगों ने हमसे बाद में प्रोग्राम के बाद में कहा कि बहुत अच्छा आपका सवाल था। तो बहुत खुशी है कि लखनऊ और यूपी के जो टूरिज़्म है उसका प्रमोशन हो और नई नई चीज़ें जो हैं वो खुलें। हेरिटेज साइट्स जो हैं जिस तरह से जैसे छत्र मंजिल है या और रोशन दौला की कोठी है या इस तरह के और भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि कन्वर्ट हो रहे हैं हेरिटेज होटल्स में। तो एक तो उनकी बका हो जाएगी, दूसरे ये है कि जो टूरिस्ट है जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो लोग जो हैं एक हेरिटेज मॉन्यूमेंट में जो है उनकी रिहाइश होगी। और हमने ये भी सजेस्ट किया कि उसमें जैसे छत्र मंजिल है उसमें एक आप इन हाउस म्यूज़ियम जो है वो बनाएं जो कि अवध के आर्टिफैक्ट्स, अवध के कल्चर्स को डिपिक्ट करें। तो ये चीज़ें हैं, देखिए आगे क्या होता है। सबके अपने सजेशंस हैं और जो के प्रोग्राम्स हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सब अच्छा ही होगा और हम मुबारकबाद देते हैं इन सबको कि बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और इस तरह के प्रोग्राम्स होना चाहिए। नवाब साहब, आप एक बहुत ही तजुर्बेकार शख्सियत हैं और लखनऊ को आपने जिया है ना, बहुत ही मतलब पुराने अरसे से आपने लखनऊ को बदलते देखा है, तब्दीली देखी है लखनऊ में। तो क्या लगता है आपको, आपके युवावस्था थी उस समय लखनऊ क्या था और आज आप लखनऊ को उस समय क्या आप देखते हैं, कितना परिवर्तन, कितनी तब्दीली आई? देखिए, सबसे जो अहम चीज़ है जो हमने फ़र्क महसूस किया है वो ज़बान का। जो ज़बान हुआ करती थी वो अब ज़बान में बहुत फ़र्क आ गया है। और उसके साथ ही साथ जो मोहब्बतें हुआ करती थी वो अब थोड़ा सा नाइत्तेफाकी आ गई। हाँ, नाइत्तेफाकियाँ हैं या उसको हम पॉलिटिसाइज किया गया है। इसकी पॉलिटिक्स की वजह से जो है इसमें डिफरेंसेस जो है पैदा किए जा रहे हैं। लेकिन लखनऊ की तहजीब ही ये है कि यहाँ जो भाईचारा है, यहाँ की जो मोहब्बतें हैं, जो लखनऊ ने जो तहजीब दी है गंगा जमनी, उसमें जो यहाँ का भाईचारा है, मोहब्बतें हैं, वो तो हैं ही। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पर जो तहजीब ने ये बताया है कि आप दूसरे के मज़हब की इज़्ज़त करें। तो ये बहुत अहम चीज़ है और इस वक्त की ये ज़रूरत है कि हम लोग एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे का ख्याल करें। जो छोटे हैं वो बड़ों की इज़्ज़त करें, जो बड़े हैं वो छोटों का ख्याल करें और साथ ही साथ एक दूसरे के मज़हब की इज़्ज़त करें। ये बहुत ज़रूरी है आज के वक्त में। नवाब साहब ने बताया कि आप शीश महल में रहते हैं, वो पुराना लखनऊ कहलाता है। आपके देखते देखते गोमती नगर क्षेत्र बच गया, उसको लोगों ने नया लखनऊ कहना शुरू किया। आज हम देखते हैं एक तीसरा लखनऊ जो शहीद पथ के रूप में उभर के सामने आ रहा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? मतलब देखिए, किसी भी शहर में डेवलपमेंट जो है वो अच्छी बात है, लेकिन हमें अपनी जड़ों में रहना चाहिए। जैसे कि अभी श्री जी हुजूर जो थे, उन्होंने अपनी जो भी स्पीच थी उसको बहुत ही सलीस उर्दू और हिंदी में दी। बहुत अच्छा लगा और बहुत लुत्फ आया उसमें। हमने इस चीज़ को कहा भी कि जो आपकी गुफ्तगू थी उसमें सबको बहुत मज़ा आया, बहुत लुत्फ आया। तो ये होना चाहिए। देखिए, अंग्रेज़ी जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है और आज के दौर में हर एक जो है बोल लेता है, लेकिन कम से कम अगर हम लोग अपनी ज़बान को प्रमोट करें, यही है प्रमोशन ऑफ आवर कल्चर। हम लोग अपने कल्चर को प्रमोट करें, अपने हेरिटेज को प्रमोट करें, उसको प्रिजर्व करें, उसको कंजर्व करें। और ज़बान जो है वो एक बहुत ही अहम चीज़ है। अगर हम अपनी ज़बान को प्रमोट करेंगे तो और चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली प्रमोट होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी अच्छी बातें हमें शहर लखनऊ और यहाँ की तहजीब के बारे में बताई। आपको शब्बा खैर। जी आदाब। सर अभी सारा सिटीज़ का मेंशन हुआ, बट सर कुशीनगर बीइंग अ बुद्धिस्ट टूरिस्ट प्लेस एंड द लास्ट डेस्टिनेशन फॉर महापरिनिर्वाण ऑफ द बुद्ध भगवान,
तो क्या सर अभी प्लानिंग में कंसिडरेशन में सर ये सब सिटीज़ हैं वहाँ पे भी बहुत सारे हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हैं विच few of them I know personally and we also own a heritage property there and we have been considering to convert into a tourism and hotel chain. तो सर वहाँ के लिए कोई पॉलिसी है अभी गवर्नमेंट के उसमें? I wanted to ask you that हमारे जो मंदिर हैं और हमारे जो religious destinations हैं उन्हें प्रिजर्व करने के लिए, उन्हें डेवलप करने के लिए एंड और इस चीज़ का भी ध्यान रखने के लिए कि वो हमारे मॉडर्न टूरिज्म में इंटीग्रेट होकर के हमारे यूपी के लोगों के लिए हेल्पफुल रहे विदाउट चेंजिंग इट्स कल्चरल एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस. And I could hear the last half of the question. Sir, my question to you was that जो हमारे मंदिर हैं और जो हमारे रिलीजियस डेस्टिनेशंस हैं, टेम्पल्स हैं, हम उन्हें कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं so that सबसे पहले नमस्कार, कृपया अपना शुभ नाम बताएं. मेरा नाम वैभव शरण सिंह है, राजकुमार शरण सिंह है. मैं तिलौरी रियासत से बिलोंग करता हूँ. वैभव जी, आज आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उपस्थित रहे. एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उसके विषय में कुछ बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा जी. और हमारे यश भाई ने पूरा कार्यक्रम देखा है और बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको मुझे बुलाने के लिए. जी. बात रही कार्यक्रम के बारे में, इस कार्यक्रम में बहुत जानने को मिला अपने कल्चर के बारे में, अपने हेरिटेज के बारे में. और सीजी उजू को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो यहाँ यूपी में आए, उन्होंने अपना एक्सपीरियंसेस बताए, होटल, बिजनेस, कल्चर, धर्म, कर्म, मंदिर और जो एक तत्व होता है राष्ट्रीय का होने का और जो तत्व होता है ठाकुर होने का, उन्होंने वो बताया. काफ़ी चीज़ सुनने को मिली और अच्छा रहा. आपके साथ आपकी बहन जी भी उपस्थित रही है ना? उनका क्या शुभ नाम रहा? मेरी बहन का नाम शुभ नाम है राजकुमारी ऐश्वर्या लक्ष्मी सिंह जी. वो भी तिलौरी से है, वो मेरी बड़ी बहन है. उन्होंने क्वेश्चन आंसर सेशन के दौरान एक प्रश्न पूछा था, उसके विषय में कुछ बताना चाहेंगे? बताना चाहेंगे. मेरी बहन ने ये प्रश्न पूछा कि हम मंदिरों को और कैसे निर्माण करें, कैसे बचाएं. तो उसमें शिव जी का ये आंसर था कि मंदिर बचाने से पहले हम खुद को करें कि हम वहाँ जाते हैं, मंदिर जाते हैं कि हम लोग कचरा फेंक देते हैं, हम लोग चप्पल जूता ऐसे कर देते हैं, वो नहीं करना चाहिए. अगर धर्म बचाना है, अगर घर बचाना, अगर देश बचाना है तो वो घर से शुरुआत होगी. वैभव जी, आपकी आयु लगभग कितनी है? मैं 25 साल का. 25 वर्ष है, बहुत अधिक आयु नहीं, युवा हैं आप. ठीक है. और बाल्यकाल से चूंकि मंदिरों पे बहन जी ने प्रश्न पूछा और आपका भी कहीं ना कहीं मंदिरों के प्रति रुझान होगा. जी बिल्कुल है ना? तो जब से भी जितनी भी आयु से आप अपने मंदिरों को देख रहे हैं, ठीक है, मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूँ. ये बाकी फॉर्मेलिटीज से हटकर है. ठीक है. तो उसमें क्या है कि हम और आप जैसे हमारे आपके हम लोग समवैचारिक हैं, हम अपने मंदिरों का संरक्षण करते हैं, है ना, उन्हें संभाल के रखते हैं, उन्हें गंदा नहीं करते, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते. ठीक है. लेकिन हमारी आपकी जो संख्या है वो समाज में कम है, हमारे जैसे लोगों की, है ना. कई ऐसे लोग हैं, अधिकतम लोग हैं जो मंदिरों को कहीं ना कहीं किसी प्रकार में हानि पहुंचाते हैं. तो उसको किस तरह से, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आज एक 25 वर्ष के युवा होने के नाते आपके मन में क्या विचार आता है कि किस तरह से रोका जा सकता है? तो ये एक शिक्षा है जो मुझे मेरे पूर्वजों से मिली, जो मुझे मेरे माँ बाप से मिली, जो मुझे मेरी बड़ी बहन से बिल्कुल मिली. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये शिक्षा बांटनी चाहिए लोगों से कि कूड़ा कचरा ये सब कॉमन थिंग्स है जो एक हर इंसान को आना चाहिए. जी जी जी. ये बहुत कॉमन सेंस है कि मैं जा रहा हूँ केदारनाथ जाते हैं हम लोग, अभी केदारनाथ विंटर जा रहे हैं. बिल्कुल. तो विंटर जाते तो हम लोग एक क्लिप तो देख लेते हैं हम लोग कि हाँ केदारनाथ घूमे. उसके बाद में जो पीछे का जो उसमें व्यू आता है कि कूड़ा कचरा सब फैले हैं. बिल्कुल. तो ये कॉमन सेंस होता है इंसान का कि भाई मैं जा रहा हूँ, तीर्थ स्थल पे जा रहा हूँ मैं और मैं अपना कचरा फेर के जा रहा हूँ. ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. ये कॉमन सेंस होना चाहिए कि मैं वही खुद का बैग खुद का लेके जाऊँ, खुद जी करूँ चीज़ें अपनी. तो ऐसे लोग हैं कि जो खुद का बैग कचरा भी करते हैं, जी जी, लेकिन वो बैग लेके खुद साफ भी करते हैं. लेकिन जो लोग गलत कर रहे हैं, जो लोग गंदगी फैला रहे हैं, उनको कैसे रोका जाएगा? देख रहे हैं, महादेव देख रहे हैं. अच्छा चलिए. आपकी जानकारी में एक चीज़ आना चाहेंगे कि अभी हरिद्वार में कांवड़ मेला संपन्न हो चुका है और वहाँ की सरकार ने और नगर निगम प्रशासन ने ये जानकारी दी कि कुछ 7,000 टन कूड़ा कांवड़िए छोड़ गए. 7,000 टन, आप समझ रहे हैं, ये बहुत भारी मात्रा है.
ठीक है, तो हमारा ही धर्म है, हम भी सनातनी हैं, आप भी सनातनी हैं, तो हमारे सनातन धर्म में कहीं ना कहीं ये सब जो एक कुछ कमियां अभी बाकी हैं। तो चलिए, आपने कहा महादेव देख रहे हैं, आपने महादेव पे छोड़ दिया है, तो ठीक है, तो फिर कर्म की बात आ गई है ना, हम अपना अपना कर्म करें। ये कर्म होता है। जी जी जी। मैं अपने सोसाइटी में कैसे हेल्प कर सकता हूँ जी, ये शिक्षा होती है, हमें पूर्वजों से मिलती है। और यही कांवड़ यात्रा की बात सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो अपने धार्मिक चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो ध्यान इस बात को भी दें किसी भी धर्म की वजह से कि भी किसी भी इंसान को हानि ना पहुंचे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, जी जी, कोई भी कार्यक्रम होने से पहले किसी भी इंसान को नुकसान ना पहुंचे। जी जी जी, ये मेरा मैसेज था उन लोगों के लिए। और शुभकामनाएं, जो भी आने वाला साल है, हमारा होली आ रहा है, हमारा दिवाली आ रहा है, तो बस इतना ही। आपके मार्गदर्शन में हम कभी तिलोई का भ्रमण करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आइए, बिल्कुल आइए, वीवीआईपी ट्रीटमेंट जाएगा, पूरा स्वागत किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद, शुभ रात्रि। the people of the Talukdars. So we have several properties at Subeha, Rudoli, Kakori, and Kaisarbagh, Kochi is also one of ours, and one in Hazrat the PD Kochi. So I just wanted to ask you, since I am working with different teams like Marun Sullivan and working as a revivalist and connoisseur of food, art, culture, music, where I can focus myself and how I can connect myself when there are diversities in our states like UP, and where even the Dega Mushaira committee, we are the committee people from the Kursi estate side. So ये छोटी-छोटी जो बातें हैं, इनके लिए हम आपसे पूछना चाहते हैं कि किस तरह से हम लोग as a female I can connect myself, and only I have been given a kitab of digital dastan because whatever things I cover in 60 seconds or 1 minute, talking about the culture cuisines of Lucknow, but that is not the end of it. What I wanted to know, like there are different kasbas, and that is all the kasbas, when you accumulate all together, that becomes the rich dialect and the culture of the Awadh, so-called then Awadh, but now UP. So how can I be given in any way where I'm just talking in a very micro level, not on the macro level of infrastructure and properties, but these things to be redeveloped and to bring in more of tourism, like I would like to get few guidelines from your end. May I request Mr. Bharat Prakash, President, to open with appreciation to Shri Amrutacharya. I would like to request Mr. Saraf to present a token of appreciation. And would request Mr. Alok Shukla to facilitate for our Shahid Champion. May I invite on the stage Sobri Rani, Srimati Fatima, and present the memento to Mr. Abhishek Saraf. Would request a group photograph of the request Mr. Saraf to kindly deliver the vote of thanks and I don't have any more words to say. Thank you so much for all of you being pleased to be here. And the dais was so wonderful that members present here are so brilliant that we made our own Gaurav Prakash lose words to say more.
So you can imagine how rich this dais was, and I'm sure everybody got their share of questions answered. For more, we have dignitaries available. Thank you very much.